हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 12 एटम्स का ब्रीफ डिस्कशन करते हुए उनके मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। दिस मॉडल प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन in 1898. According to this model, the positive charge of an atom is uniformly distributed throughout the volume of an atom, and negatively charged electrons in banded like seeds in a watermelon. जैसे वाटरमेलन होता है, उसमें जो लाल गूदा होता है वो लाइक एज द पॉजिटिव चार्ज is uniformly distributed throughout the atom, and seeds like as the electrons distributed in the whole parts. Next topic is Rutherford alpha scattering experiment, जिसे हम जीजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हमारा HBSC और CBSC दोनों के अंदर ये कई बार आपका जीजर और मार्टन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट हमसे क्या कहता है कि रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट्स जीजर एंड मार्टन performed an experiment to study the scattering of alpha particles from the thin gold foil. जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, the beam of alpha particles incident on the zinc sulfide screen after passes through a thin slit and thin gold foil. The size of this foil is very small, 10 की पावर माइनस 3 millimeter या 10 की power minus 6 meter. After scattered from this foil, they scattered in all directions were observed with the help of microscope. Observations and results. First observation: most of alpha particle passes through the gold foil undeflected because most of the space of an atom. Few alpha particles scattered in small angles less than 90, and few alpha particles scattered in large angle more than 90, and few alpha particles retraces its own path. 1 out of 8,000 retraces its own path. Number of nanoparticles per unit area reach on the screen is found as n theta is inversely proportional to 1 upon sin की power 4 theta by 2. Theta means angle of scattering. अगर पेपर में कभी इसका ग्राफ बनाने के लिए आपसे बोला जाए तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? एन थीटा, यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका? इस टाइप से बनेगा, क्योंकि एन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin की पावर 4 थीटा by 2. Next topic is impact parameter, the perpendicular distance of velocity vector of alpha particles directed towards the nucleus far away from the nucleus. इम्पैक्ट पैरामीटर को हम जो डिनोट करते हैं वो बी से करते हैं, b इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k के बराबर होता है। k का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और b का मतलब है इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स directed towards the center of the nucleus. It coming to rest, it retraces its own path. At the distance of closest approach, whole kinetic energy of alpha particle is converted into potential energy. Distance of closest approach को डिनोट किसे करते हैं? R नॉट 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k. ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या कहती है? It failed to explain the stability of an atom. Number 2, it failed to explain spectrum of any atom. यानी पहला ड्रॉबैक क्या कहता है कि किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाया। सेकंड, किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को बताने में ये फेल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नील बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसके जो मेन पोस्टुलेट्स आपसे क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली
in the certain allowed circular orbits of definite energy. These orbits are also known as stationary orbits. Second postulates क्या कहता है? The electron can revolve in those orbits in which its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. यानी angular momentum L equal to nh upon 2 pi. L का मतलब होता है mvr equal to nh upon 2 pi. This is known as Bohr quantization condition बोलते हैं. And next आपके पास postulates क्या कहता है? The energy is radiate only when the electron jumps from higher energy orbits to lower energy orbits. E1 किसकी एनर्जी है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट. E2 किसकी है? हाई एनर्जी ऑर्बिट. तो आपके पास कितना आ जाएगा? E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू के बराबर आ जाएगा. तो यहां से न्यू कितना आ जाएगा? E2 माइनस E1 अपॉन H. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है. ये जो आपको टॉपिक जो दिखाई दे रहा है ये आपका डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलहाल हम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं इनके मेन फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो उसमें हम चार चीजों के बारे में बात करेंगे. पहला रेडियस के बारे में, दूसरा वेलोसिटी के बारे में, तीसरा काइनेटिक एनर्जी के बारे में. तो जब रेडियस के बारे में बात करेंगे तो रेडियस कितना आएगा हमारे पास? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड एम के इंटू ई स्क्वायर, जिसमें एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, के कांस्टेंट और ई स्क्वायर. यहां पर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखी हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो कितना आएगा? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, जिसको हम अप्रोक्स 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम बात कर रहे हैं. अगर कोई आपसे पूछे कि बोहर रेडियस क्या होता है तो आप एन की वैल्यू क्या रख दोगे? 1. तो R1 आपका कितना आ जाएगा? 0.529 आ जाएगा. नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. कितना आएगा? Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई जेड ई स्क्वायर बाय NH, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के बोलते हैं. तो हम कई जगह इसको 2 पाई जेड के ई स्क्वायर बाय NH रख सकते हैं. 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट. तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और n का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह बार बार बोल रहा हूं मैं, इसको हम के लिख सकते हैं. तो कितना आ जाएगा? जेड के ई स्क्वायर अपॉन 2 आर. पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी मेरे पास? फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर. तो उसको ध्यान में रखते हुए कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की? वो आ जाएगी, मैंने बोला अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर. तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा आपके पास माइनस 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टोटल एनर्जी की बात करोगे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैं फिलहाल आपको यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें. तो इनके लिए ये फॉर्मूले याद रखे चले, और इसके ऊपर 100% एक न्यूमेरिकल बनता है, और उसके लिए इस ट्रिक को हमेशा याद रखें. क्या याद रखेंगे? कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है. एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी या -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी. अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी हमारे पास? 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू एम अपॉन में एन क्यूब एच क्यूब, यानी न्यू एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
1/n⁴। ध्यान रखना, अगर हम इन सबकी वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना बन जाएगा 6.6 × 10⁻15 Z² के बराबर हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास आता है वेवलेंथ और वेव नंबर। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/λ = r Z², 1/n, यहाँ पर लिखा हुआ n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर, जिसमें n1 जो होता है ये कौन सा है हमारे पास, फाइनल वैल्यू यानी फाइनल ऑर्बिट, और n2 का मतलब होता है इनिशियल ऑर्बिट। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन मेरा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 2, और n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1। और इसमें जो ये r दिखाई दे रहा है इसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स के बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम jump from higher energy orbit to lower energy orbit, the difference of energy of the two energy levels is emitted as radiation of wavelength known as spectral lines. The spectral lines of different wavelengths are obtained for transition of electron between two different energy levels. हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में टोटल 5 सीरीज हैं। इसमें पहली आपकी लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफर्ड सीरीज। लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू फर्स्ट ऑर्बिट। बाल्मर फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, एंड पास्चन हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू थर्ड ऑर्बिट। ब्रैकेट सीरीज, when electron jump from higher energy orbit to fourth orbit, and पिफर्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। अगर हम लाइमन की वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं तो 1/λ इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का होल स्क्वायर होती है। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो शॉर्टेस्ट का मतलब होता है आपकी फाइनल लिमिट से कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पर आए, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। फाइनल लिमिट का मतलब क्या होता है, एन इनिशियल जो है वो इंफिनिटी पर हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के आए अंदर आए। ये सीरीज हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में काम करती है, और इस सीरीज ऑब्टेन करती है एमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बताती है। बिट से इन बाल्मर सीरीज द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट्स। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इंफिनिटी टू सेकेंड में, एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थर्ड से सेकेंड के अंदर। पेपर में बहुत बार पूछा गया है लाइमन के बारे में, बाल्मर के बारे में, पास्चन के बारे में, उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ और उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। बाल्मर सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन, and this series is obtained only in emission spectrum. That is the Paschen series. Electron jumps from higher energy orbits to third orbit. यानी वेवलेंथ की बात करें तो 1/λ इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो n2 की वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी टू थर्ड। लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। This series lie in ultraviolet region. This series lie in infrared region of the electromagnetic spectrum. This series is obtained only in the emission spectrum. Fourth is the bracket series. Electron jump from higher energy orbit to fourth orbit. Wavelength 1/λ equal to r 1/4 का स्क्वायर minus 1/n2 का whole square. Shortest wavelength infinity to fourth orbit. Longest wavelength fifth orbit to fourth orbit. This series lie in far off infrared region. Last series, Refund series, when the electron jump from
higher energy orbits like 6, 7, 8 up to infinity to fifth energy orbit या लेवल यानी फिफ्थ। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n2 equal to infinity 2 and 1 equal to 5 and longest wavelength 6th orbit to 5th orbit and this series lie and this series lie in far off infrared region or this series is obtained only in the emission spectrum। आज चैप्टर 12 एटम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जिन टॉपिकों को कवर करेंगे उनमें पहला टॉपिक होगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सेकंड इज बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड फोर्थ डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। एक एक करके हर टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस और रीजनिंग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सब कुछ आपको बताएंगे। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम जीजर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं क्योंकि रदरफोर्ड के साथ उसके जो एसोसिएट्स थे उसके कुलीग थे जिनका नाम जीजर और मार्सडन था। पेपर में अक्सर ये जीजर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से ही आता है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है थ्योरी का है डिस्क्राइब वेरीफाई जीजर मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिपिक्ट द ग्राफ showing the variation of number of scattered particle detected with the scattered angle. How did this graph leads to the discovery of the nucleus? सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जीजर और मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताएंगे। उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन वगैरह बताएंगे और बाद में हमसे पूछा गया है कि उसका एक ग्राफ बना के दिखाना है हमको। किसके बीच में ग्राफ बना के दिखाना है स्कैटर्ड एंगल के बीच में और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स के बीच में। तो ग्राफ आपका इस तरह से बनता है, ये भी आप इस पे बना के दिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है इसके अंदर पहला पार्ट एन अल्फा पार्टिकल having kinetic energy K approaches a nucleus of atomic number Z. It gets close to the nucleus and then approaches a distance D and reverses its direction. Obtain an expression for distance of closest approach in terms of kinetic energy of the alpha particle. सिंपल सी बात को दिमाग में फीड करें। क्या कह रहा है इसके अंदर हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को एक्सप्रेशन बतानी है और उसकी डेफिनेशन बतानी है। ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताएंगे द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इट कमिंग टू रेस्ट इट रिट्रेसेस इट्स ऑन पाथ। उसके बाद कुछ कंडीशन बताएंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटली कन्वर्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी जो एक्सप्रेशन बन के आएगी D इक्वल टू 2Z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K होता है। Z क्या होता है एटॉमिक नंबर और K का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल अप्रोच ए टारगेट न्यूक्लियस इन हेड ऑन पोजिशन with equal velocities. Find the ratio of their distances of closest approach to the target nucleus. कौन कौन से पार्टिकल दे रखे हैं एक प्रोटॉन दे रखा है और एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है। सिंपल सी बात को ध्यान रखें दोनों पे एक तो चार्ज में फर्क पड़ेगा और एक उसके मास में फर्क पड़ेगा। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है फॉर्मूला होता है 1h1 और आपके पास जो अल्फा पार्टिकल होता है उसको हम हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं 2he4। तो वही हम आपको हिंट दे रहे हैं
कि वही फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, z इक्वल टू d इक्वल टू 2Zeq 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ mv स्क्वायर। q और m को बाहर ले लीजिए, बाकी सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ले लें, और यहां से क्या है, हम इजिली क्या करते हैं, इनकी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट के बारे में सुनेंगे। ए प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोचेज ए गोल्ड न्यूक्लियस z इक्वल टू 79, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें क्या दे रखा है, हमको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और हमें z की वैल्यू दे रखी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला 2ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k। z की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू गिवन है, तो d आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टॉपिक फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर, राइट द एक्सप्रेशन। हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डेफिनेशन देनी है और इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन देनी है और उनकी एक्सप्रेशन को राइट डाउन करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है उसका नाम है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The kinetic energy and potential energy of the electron in the first excited state will be। हमारे पास टोटल एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल के देनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। चार हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ऑप्शन है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी ऑप्शन है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में अक्सर ये पेपर में आता है। इसके लिए एक ट्रिक या हिंट याद रखें, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, वो बराबर होती है माइनस टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लाएं तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां पर जब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम की। तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1। बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। और फॉर्मूला कितना होता है टोटल एनर्जी का, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से टोटल एनर्जी निकल के आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर निकालनी क्या है हमको, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी, यानी माइनस, और टोटल एनर्जी कितनी है, -3.4। तो आपके पास कितना आ गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। फिर इसी तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास इसका आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट of hydrogen atom is -3.4 electron volt. Find its angular momentum. टोटल एनर्जी हमको गिवन है किसी बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की, और एंगुलर मोमेंटम निकालना है। बहुत आसान, जैसे क्वेश्चन अभी 4th किया ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले टोटल एनर्जी आपको गिवन है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ई की वैल्यू हमको गिवन है। एन की वैल्यू निकल गई,
उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और इजिली हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिक्स्थ, एक सिंपल सी डेफिनेशन है और उसकी वैल्यूज है। व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, और राइट इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कम से कम एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है आपके पास, और इसकी जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस केस के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। क्वेश्चन नंबर आप 7th देखेंगे। हाउ इज द नेसेसरी फोर्स प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन to keep it moving in a circular orbit according to Bohr model of hydrogen atom? Drive an expression for total energy of an electron moving in an orbit of radius r in hydrogen atom. Give the significance of negative sign in this expression. ये जो आपको सेवंथ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपका एक डेरिवेशन है जहां पर टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करके देनी है, जिसको आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। इसमें लास्ट में देखो आपको एक बात पूछी गई है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन दिस एक्सप्रेशन, यानी जब ये एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसमें एक नेगेटिव साइन आता है, तो वो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप अनलेस इट गेन्स सफिशिएंट एनर्जी। तो ये ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव साइन क्या चीज शो करके दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये भी आपका डेरिवेशन है। यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट्स ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। आल्सो फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस, यानी ए नॉट निकालना है। यानी इसके अंदर पहले तो आप रेडियस निकाल के दिखाएंगे, यानी r इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर एम जेड के इंटू ई स्केयर प्रूव करोगे। फिर उसके बाद हम बोहर रेडियस की बात करेंगे, तो बोहर रेडियस की जो वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, वो हम इसमें निकाल के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ first angular momentum of electron, second radius of the orbit, and third kinetic energy of electron. Take radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.5 angstrom. इस क्वेश्चन में रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का हमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व सेकेंड ऑर्बिट में कर रहा है, उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, एन आपको मालूम है, एच आपको मालूम है, एल को आप फाइंड आउट कर सकते हो। रेडियस निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला आपको मालूम है, आर एन इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर जेड एम के इंटू ई स्केयर। एन की वैल्यू 2 रख देंगे और सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी से पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, पहले भी निकाल चुके हैं, -13.6 अपॉन एन स्केयर, एन की वैल्यू 2 रख देंगे, टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। फिर वहां से हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको ये हिंट दिया हुआ है, इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। टॉपिक 3 एंड 4 की बात करते हैं। एक टॉपिक है डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स, सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन, एंड फोर्थ टॉपिक है आपका लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनके बेसिस पर कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आप चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट बोहर्स पोस्टुलेट टू डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम। हाउ डज द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑर्बिट्स। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये, आप इसको डेरिवेशन भी बोल सकते हो, जिसके अंदर हमें क्या करना है, बोहर पोस्टुलेट का यूज करके हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। द लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3646 एंगस्ट्रॉम।
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। लिमिट का मतलब होता है फाइनल लिमिट, यानी कि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर हमारे पास जो सीरीज है उसमें 5 सीरीज होती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और प्रिफंड। बाल्मर सीरीज कहां पर काम करती है? जो सेकंड सीरीज को बोलते हैं। थर्ड से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? सेकंड पर, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट मेंबर। अगर इंफिनिटी से सेकंड पर आ रहा है तो उसे बोलेंगे लास्ट लिमिट। तो क्या कह रहा है इसमें? फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/λ इक्वल टू आर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/ni का होल स्क्वायर। बात कर रहा है सीरीज लिमिट, लास्ट लिमिट, इसका मतलब ni इक्वल टू इंफिनिटी, यहां पर हम इंफिनिटी रख देंगे। फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं तो तीसरे ऑर्बिट से कहां आएगा? दूसरे में। तो ni की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान देंगे 12। एक डायग्राम बना हुआ है। द डायग्राम शो 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। Identify the transition in which the emitted photons will have the highest energy। एटम्स के अंदर इस तरह के डायग्राम के क्वेश्चन भी अक्सर आपको मिल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व होंगे। ये आपके पास हमको क्या कह रखे हैं? 4 एनर्जी लेवल दे रखे हैं, n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट ट्रांजिशन थर्ड से फर्स्ट, सेकेंड फोर्थ से थर्ड, थर्ड सेकेंड से 1 और फोर्थ थर्ड से सेकेंड। कहता क्या है कि इनमें से कौन सी का ट्रांजिशन आपका करेक्ट है जो हाईएस्ट एनर्जी रखता है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे और हर ट्रांजिशन की वेवलेंथ निकाल लेंगे। कहाँ आ रहा है ये? तीसरे से पहले में, तीसरे से पहले में निकल के आ गई लैम्डा। यहां से आपके पास हमने निकाल दिया, ये आ गया, अगले में ये आ गया, उसके अगले वाले में ये आ गया। और हम ये जानते हैं कि एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा, यानी कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका 1/λ ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, और यहां पर 1/λ किसका ज्यादा है? 0.88 आर पहले वाले का, पहले फर्स्ट ट्रांजिशन का। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट ट्रांजिशन की। तो हमने आज जो क्वेश्चंस लिए चैप्टर 12 एटम्स के, आप इसको आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम चैप्टर 13 न्यूक्लियाई का फास्ट रिवीजन करेंगे और जो उसके मेन टॉपिक्स हैं उनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे बना, कहाँ पर रहता है, कौन कौन सी चीज उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, उससे आप कंपोजिशन कहते हो। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। The whole positive charge or whole mass of an atom concentrated in a very small region. Nucleus of an atom contains protons and neutrons, which are collectively known as nucleon. यानी nucleon be the sum of protons and neutrons. इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। डिनोट किससे करते हैं? जेड से। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसे एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से। अगर यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, माना एलिमेंट मेरे पास क्या है? एक्स, ए क्या है? उसका मास नंबर, और जेड क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। तो जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और यही बराबर होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसीलिए किसी भी एटम को हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर होता है। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की बात की जाए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास, उसे किसके बराबर बोलते हैं हम? ए के बराबर, यानी मास नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं इन एन एटम? यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, ए माइनस जेड। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास, वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर के बराबर होता है। वहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रेडियस आएगा आएगा वो r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जिसमें आर नॉट को हम एम्पेरिकल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर होती है, और ए को हम मास नंबर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जिसे हम न्यूक्लियर डेंसिटी कहते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी होती है मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है उसका ऑर्डर होता है 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके ऊपर आपके रीजनिंग यानी कि न्यूक्लियर रेडियस के ऊपर और न्यूक्लियर डेंसिटी के ऊपर आपके रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारे पास दो न्यूक्लियाई दे रखे हैं जिनके मास नंबर सो एंड सो है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप सभी कि रेडियस जो होगा वो हर न्यूक्लियाई का अलग होगा, क्योंकि हर न्यूक्लियाई का मास नंबर भी अलग होगा। बट न्यूक्लियर डेंसिटी ऑल डिफरेंट न्यूक्लियाई आर सेम, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। नेक्स्ट हमारे पास तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस है। नंबर वन आइसोटॉप्स, नंबर टू आइसोबार्स, नंबर थ्री आइसोटोन्स। पहली डेफिनेशन है आइसोटॉप्स। दीज आर those elements which have same number of atomic number but different mass number, यानी जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं, 1h1, 1h2, 1h3। हम एक एग्जांपल कार्बन का भी ले सकते हैं, कार्बन C612, कार्बन C613 एंड कार्बन C614। नेक्स्ट आपके पास है आइसोबार्स। दीज आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जांपल्स आप दे सकते हो सोडियम 1122 एंड नियोन 1022। आप देख पा रहे हो दोनों के अंदर मास नंबर क्या है आपका, सेम। तीसरा हमारे पास है isotopes. These are those nuclei which have the same number of neutrons, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। क्लोरीन दे रखा है 17 37, 37 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा 20। दूसरा एग्जांपल देखो के, यानी कि 19 39, 39 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, यानी इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस which hold together the nucleons. Nucleons means neutron plus protons in the tiny nucleus of an atom. उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ये वाला क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि राइट 2, 3 या 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो आप इनको याद रखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सेकेंड इज शॉर्ट रेंज फोर्स। थर्ड, डज नॉट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। एंड फोर्थ, चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कभी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मास डिफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या होता है ये? इट इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ masses ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये क्या है कि न्यूक्लियन के मास में से अगर न्यूक्लियस के मास को घटा दिया जाए तो उस डिफरेंस ऑफ मास को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट का, डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस में एम, टोटल मास। जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एम पी मास ऑफ ईच प्रोटॉन, जेड एम पी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, ए माइनस जेड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एम एन मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। दोनों मिला के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होगा ये हो गया आपका मास ऑफ न्यूक्लियन। तो मास ऑफ न्यूक्लियन में से किसके मास को माइनस कर दिया, आपके न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दिया, जिससे आप मास डिफेक्ट कहते हैं। सेकंड इज बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर या एम सी स्क्वायर। यहाँ पर हम मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट कर रहे हैं, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर आ गया। डेल्टा एम की वैल्यू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस में एम एन इंटू सी स्क्वायर।
अगर हम इसको मेगाटॉन वोल्ट की फॉर्म में लेंगे तो ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN इंटू यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 AMU की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 AMU की वैल्यू जो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी टू द मास नंबर या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ऊपर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस, न्यूक्लियस इज लेस स्टेबल, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर, न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। इसमें मेनली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। नंबर 1 लाइटर न्यूक्लियाई, जिनका मास नंबर आपका 4, 8, 12, 16 और 20 होता है। ये न्यूक्लियाई अपने नेबर्स के मुकाबले में मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रखते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियाई मोर स्टेबल हैं देन देयर नेबर्स। उसके बाद ए ग्रेटर देन 40 होता है, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी, एकदम शार्प बढ़ेगी। और इन केस ऑफ आयरन 2656, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, जो कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। इसका मतलब हो गया आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आफ्टर आयरन 2656, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें यूरेनियम 92 238 की, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्रॉप टू 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस हेवी एलिमेंट्स आर लेस स्टेबल इन द पीरियोडिक टेबल। ये हम इस ग्राफ को समझा सकते हैं और इस ग्राफ की मेन फीचर्स भी बता सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। द आइडेंटिटी ऑफ द न्यूक्लियस चेंज व्हेन द एनर्जेटिक पार्टिकल इज बम्बार्डेड ऑन इट। जब कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल किसी भी हम न्यूक्लियस पे टकराएंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को बदल देगा। जिसमें ए, जो ए आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल ए, इसको टारगेट न्यूक्लियस कहते हैं। ए का मतलब ये आपका एक एनर्जेटिक पार्टिकल है। बी आपका है डॉटर न्यूक्लियस, या जो आउटगोइंग पार्टिकल्स वो क्या है, स्मॉल बी है इसमें। और जो क्यू आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इसके अंदर जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह की एनर्जी आएंगी, जिसको कहते हैं हम लोग क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस एनर्जी इवॉल्व होगी, उसे देनी पड़ेगी, और उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, नाभिक विखंडन कहते हैं। द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल हेवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई एंड रिलीज्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस के अंदर जब स्लो डाउन न्यूट्रॉन बम्बार्डेड विद एक हेवी न्यूक्लियस, यूरेनियम न्यूक्लियस, this uranium nucleus break into two parts, barium or krypton, and 3 neutrons are released and release large amount of energy. Slow down neutron bombarded with uranium 92 to 35 देता है barium and krypton and released 3 neutrons and large amount of energy. The value of energy in case of nuclear fission 200 mega electron volt per fission reaction. Next आपके पास रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। It is the phenomenon of two or more lighter nuclei are fused together, joined together, form a single heavy nucleus. इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो न्यूट्रॉन्स लेते हैं, 1h2 1h2, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा। और एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। टेम्परेचर हमें कितना चाहिए, 10 की पावर 7 केल्विन। आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट ग्राफ और डिस्कस करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के बीच में होता है। ये ग्राफ कई बार एचबीएससी और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा आपका, यानी पोटेंशियल एनर्जी
along the y-axis and distance of separation along the x-axis. ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको ग्राफ को बना देंगे और इस ग्राफ के बेसिस पर आपके क्या कंक्लूजन्स निकले हैं, ये भी आप देख लेंगे। पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है आपके पास, वो मच स्ट्रॉन्गर दैन द कूलम्ब फोर्स होता है हमारे पास, एक्टिंग बिटवीन चार्ज्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन masses. Second is nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as their distance is more than Fermi. और थर्ड और लास्ट पॉइंट, इसमें देखो दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ग्राफ के अंदर आपको, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ग्रेटर देन आर नॉट है तो फोर्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टिव, और अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लेस देन आर नॉट है तो फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर या मोर रिपल्सिव। तो आज हमने काफी टॉपिक डिस्कस किए, जिनमें से मेन टॉपिक्स मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का ग्राफ, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। आज हम चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU कहते हैं, एंड राइट द रिलेशन बिटवीन AMU एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, आइसोटॉन्स आर न्यूक्लाइड्स हैविंग, पहला ऑप्शन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेकेंड same number of protons but different number of neutrons, C same number of protons and also same number of neutrons, D different number of protons and also different number of neutrons। आप जानते हैं आइसोटॉन्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसे आप क्या कहते हो, आइसोटॉन्स कहते हैं, और प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी देखो इसमें क्या प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है, इसके प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है, ये भी गलत है। क्वेश्चन आपको कौन सा है, ये वाला ठीक है बस। टॉपिक सेकंड, साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। थर्ड क्वेश्चन, टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:27। What is the ratio of their radii and their nuclear densities? बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग एक्सपेरिमेंटली उसको डिटरमाइन करना जानते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस को। वो उसका फॉर्मूला होता है R1/R2 इक्वल टू A1/A2 की 1/3, और A1 रेशियो A2 हमको 1/27 दे रखा है। इस फॉर्मूले में इसको डाल देंगे तो आपका जो रेडियस निकलेगा वो 1/3 आ जाएगा। और डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है दोनों के दोनों न्यूक्लियाई के लिए डेंसिटी क्या होगी, 1:1 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थर्ड जैसा ही है। द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्युमिनियम 1327 इज 3.6 Fermi. Find the nuclear radius of copper 2964। इसमें हमें एल्युमिनियम का मास नंबर पता है 27, रेडियस पता है 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, कॉपर का मास नंबर पता है 64, R2 यानी रेडियस निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है R2/R1 फॉर्मूला होता है, वैसे R1/R2 इक्वल टू A1/A2 की 1/3, लेकिन हमें क्या करना है, R2 निकालना है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। तो R2/R1 इक्वल टू A2/A1 का 1/3। R1 को इधर उठा के ले गया, R1 की वैल्यू हमें नॉन है, A2 भी पता है, A1 भी पता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, पहला पार्ट, हाउ इज द size of nucleus found experimentally,
राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस का साइज एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड करते हैं। रिलेशन यानी R इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/3, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर, यानी डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये आपको प्रूव करके दिखाना है हमें। नेक्स्ट है आपका टॉपिक 3, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जिसके अंदर हम मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिफाइन द टर्म्स। नंबर 1 मास डिफेक्ट, नंबर 2 बाइंडिंग एनर्जी, और दोनों को डिफाइन करके उनका फॉर्मूला बताना है एंड राइट फॉर्मूला फॉर ईच टर्म्स। आसानी से आप बता पाएंगे, बेहद आसान है ये। क्वेश्चन 7, पहला पार्ट, शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ग्राफ बनाना है, और ग्राफ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी हमें डिस्कस करनी है। बी पार्ट देखो, 2 न्यूक्लियाई विद लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस फ्रॉम ए न्यूक्लियाई विद मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या कह रहा है हमसे ये कि 2 न्यूक्लियाई हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी, जिनको कंबाइन करने से जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और उसके बाद वो हैवी न्यूक्लियस जो बनता है वो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी उसकी ज्यादा। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन इट, ये न्यूक्लियर रिएक्शन कैसी होगी बताया मैंने अभी आपको, फ्यूजन। सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे, वेदर द masses of nuclei increases, decreases और remain unchanged, यानी इससे जो मास होगा वो बढ़ेगा न्यूक्लियाई का, घटेगा या सेम रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, डिक्रीज। थर्ड, डज द प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी और प्रोड्यूस एनर्जी। तो आसानी से इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो भाई, सिंपल सी बात है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कहता है हमसे, the process of 2 or more lighter nuclei fuse together form a single heavy nucleus and release large amount of energy। और जो इंडिविजुअल हमारे जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका हमेशा मास बनने वाले न्यूक्लियस से ज्यादा होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर फ्यूजन। और मास ऑफ न्यूक्लियाई हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द कार्बन आइसोटॉप C612 हैज ए न्यूक्लियर मास ऑफ 12U, U का मतलब है AMU। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। गिवन मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 ऑफ U, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 ऑफ U एंड 1U 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखें, अगर कभी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ना भी आपको दिया जाए तो ये दोनों, इनकी वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी एलिमेंट के लिए आए, तो सबसे पहले आप मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M। Z कितना है हमारे पास, 6, MP 1.007825 U, A माइनस Z यानी 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6, MN 1.008665 ऑफ U माइनस क्या है M, टोटल मास कितना है 12। बाइंडिंग एनर्जी जो यहां मास डिफेक्ट आएगा उसको 931 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे,
फिर उसके बाद निकाला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन में क्या होता है, मास नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। मास नंबर कितना है 12, यहां से जो वैल्यू आएगी उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आसानी से आप लोग निकाल पाओगे। हर एलिमेंट का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है इसका। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, पहला पार्ट, कंसिडर दी सो कॉल्ड DT रिएक्शन, ड्यूटेरियम ट्रिटियम रिएक्शन in a thermonuclear fusion reactor the following nuclear reaction occurs। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको एक एलिमेंट दे रखा था और इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक रिएक्शन दे रखी है 1H2 यानी ड्यूटेरियम, 1H3 यानी ट्रिटियम, बनता क्या है, हीलियम बनता है 2He4। क्या निकल गया आपका, एक न्यूट्रॉन निकल गया और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइंड निकल के चली गई। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है हमको, इसका मास गिवन है, इसका मास गिवन है, इसका मास गिवन है और इसका मास गिवन है। इस वाले हिस्से को इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें कि इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और इस वाले हिस्से को बोलते हैं प्रोडक्ट। जब हम मास डिफेक्ट निकालेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस में मास ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। कभी भी गलती नहीं करनी है हमें कि मास ऑफ प्रोडक्ट में से मास ऑफ रिएक्टेंट घटाएंगे, नहीं, हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर डेल्टा एम पॉजिटिव आता है तो उसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और अगर नेगेटिव आता है तो उससे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यह भी कभी कभी पूछा जा सकता है। जब आपका डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट निकल जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्या निकल के आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बाय यूजिंग द प्लॉट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस द मास नंबर। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ग्राफ बनाना है और ग्राफ की सहायता से न्यूक्लियर फिजन यानी हैवी एलिमेंट्स एंड न्यूक्लियर फ्यूजन यानी लाइटर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। आसानी से कर पाएंगे आप। टॉपिक 4, न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10, पहला पार्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत कई बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान देंगे अच्छी तरह से। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। सेकंड, ड्रॉ ए प्लॉट showing the variation of potential energy of two nucleons as a function of distances between them. Identify the regions in which the force between the nucleons is. Number 1 attractive, number 2 repulsive. Justify your answers. सेकेंड वाले पार्ट के अंदर, पहले वाले पार्ट में तो सिंपल न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज बतानी है। न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स आर द स्पिन डिपेंडेंट, और ये सबको बताने हैं। और दूसरे के अंदर हमें पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का आपका ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ के अंदर हमें ये चीज शो करके दिखानी है कि आपका रिपल्सिव कहां पर होगा और अट्रैक्टिव कहां पर होगा। आसानी से बता पाएंगे आप। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है, फिफ्थ, न्यूक्लियर एनर्जी। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। वेरीफाई, डिस्कस वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर और फ्यूजन क्या होता है। फिजन क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ ए सिंगल हैवी न्यूक्लियस split into two or more lighter nuclei and release large amount of energy। किसने किया था इसको, ऑटो हॉर्न। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर फॉर्म ए सिंगल हैवी न्यूक्लियस एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और एक एग्जांपल भी आसानी से हम बता पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई इफ द टू न्यूक्लियर reactions
mentioned below are endothermic or exothermic. शो यूर कैलकुलेशंस। हमारे पास यहां पर दो रिएक्शंस दे रखी हैं, ध्यान से देख लो। कह रहा है यूज द इंफॉर्मेशन बिलो टू आंसर द क्वेश्चंस। देखो 1p1 यानी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमको गिवन है, इसका मास हमको दे रखा है, लिथियम का मास हमको दे रखा है, हीलियम का मास हमको दे रखा है, और न्यूट्रॉन का मास हमको दे रखा है, और बोरॉन का मास भी हमको दे रखा है। क्या करेंगे, तरीका मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले इसे बोलेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा डेल्टा एम निकालेंगे, मास डिफेक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर वैल्यू आई पॉजिटिव तो आप बोलोगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और क्यू वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा हमारे पास, कम होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से, यानी ये ज्यादा होगा और ये कम हो जाए, तो आपके पास क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी और उसे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इस तरह से आप आसानी से, तरीका वही, पहले मास डिफेक्ट निकालना, मास डिफेक्ट निकालने के बाद उसका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना, तो आसानी से क्यू वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।